A very good morning, students. In today's class, we are going to start our new chapter, chapter number 3, which is some general theorems on differentiable functions and expansion. In this chapter, we will study Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder, Lagrange's form of remainder. ठीक है, टेलर्स थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज and another form of Taylor's series, another form of Taylor's series. In today's lecture, we will be discussing Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder. Taylor's theorem, basically it is general form of Lagrange's mean value theorem. ठीक है, Taylor's theorem is a general form of Lagrange's mean value theorem. And what is Lagrange's mean value theorem? Lagrange's mean value theorem states that if a function f of x is continuous in closed interval a to a plus h and differentiable in open interval a to a plus h, then there exists a real number theta which is strictly greater than 0 and strictly less than 1, such that f of a plus h is equals to f of a plus h f dash a plus theta h. Is it right, girls? अब Rolle's theorem is used to prove Taylor's theorem, and Rolle's theorem states that if a function f of x is continuous in closed interval ab, differentiable in open interval ab, and f of a is equals to f of b, then there exists one real number c belonging to open interval ab such that f dash c is equals to 0. Next comes Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder after n terms, which states that if a function f of x is such that f of x, f dash x, f double derivative, f n minus 1 at derivative are continuous in closed interval a to a plus h, and nth derivative of f exists in open interval a to a plus h, then there exists one real number theta which lies between 0 and 1, means theta is strictly greater than 0 and strictly less than 1, such that f of a plus h is equals to f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f double derivative a plus so on h की power n minus 1 divided by n minus 1 का factorial f n minus 1 at derivative of f at x is equals to a plus h की power n divided by n factorial nth derivative of f at a plus theta h. To prove this theorem, हम consider करते हैं एक function, that is consider the function capital of f of x which is equals to f of x plus a plus h minus of x f dash x plus a plus h minus x का whole square f double derivative at x divided by 2 factorial plus so on h की पावर a plus h minus of x की पावर n minus 1 divided by n minus 1 factorial f n minus 1, that is n minus 1 at derivative of f of x plus h की a plus h minus x की whole power n divided by n factorial a. अब आप कहोगे यहाँ a क्यों कंसिडर करा? देखो, जब मैं f of x को a पुट करूँगी तो यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, h f डैश a आ जाएगा जो मुझे चाहिए. जब मैं यहाँ पर a पुट करूँगी तो h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a आ जाएगा, सेम एज इट इज. सिमिलरली यहाँ पर, बट अब यहाँ पर मुझे a नहीं चाहिए, मुझे nth डेरिवेटिव ऑफ f प्लस एट x इज इक्वल्स टू a प्लस थीटा h चाहिए. तो मैंने ये टर्म जो ये सब फॉलो कर रहे हैं जो पैटर्न, वो ये टर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, पैटर्न ये टर्म फॉलो नहीं कर रहे, तो इस टर्म को हमने एज एफ ए से डिनोट कर दिया. तो मतलब इस टर्म को हमने
फाइंड आउट करना दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू दिस, उसके लिए मैंने ये फंक्शन कंसिडर करा और ये फंक्शन मैंने उस अकॉर्डिंग कंसिडर करा है कि मेरा ये रिजल्ट आ सके। इज इट राइट गर्ल्स? क्योंकि मैं x को a पुट करूँगी तो सारी टर्म्स आ जाएंगी, बस ये वाली टर्म नहीं आएगी, तो उसके लिए मैंने कैपिटल ए लिया। अब कैपिटल ए की वैल्यू मैं निकालूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कंडीशन भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी स्मॉल ऑफ एफ ए प्लस एच आनी चाहिए। इज इट राइट गर्ल्स? अब इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए वी विल बी यूजिंग रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट विच इज टू बी डिटर्मिन्ड, विच इज टू बी डिटर्मिन्ड such that f of a, capital of f of a is equals to capital of f of a plus h। मुझे ये कंडीशन पता चल गई कि कैपिटल ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, तो रोल्स थ्योरम में अगर मुझे इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ठीक है, कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल होना चाहिए इन open interval a to a plus h and capital of f of a is should be equals to capital of f of a plus h, तब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन तो मेरी ट्रू है, तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, f of x is continuous at this and capital of f of x is derivable in open interval a to a plus h। बिफोर दैट मुझे पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो एक बार इस इक्वेशन में x को a पुट करूँगी, एक बार इस इक्वेशन में मैं x को a प्लस h पुट करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा, लेट अस सी। Putting x is equals to a in 1 we have क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ f of a is equals to स्मॉल ऑफ f of a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव एट a प्लस सो ऑन h की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 एट डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू a प्लस h की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल a। इज इट राइट गर्ल्स? एक ही इक्वेशन आ गई थी, उसको स्टार कंसिडर कर लिया। नाउ कम्स पुटिंग x इज इक्वल्स टू a प्लस h इन 1 वी हैव अब इसमें हमने क्या करना है, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच पुट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू स्मॉल ऑफ f ऑफ a प्लस एच। अब बाकी टर्म्स a प्लस एच माइनस a प्लस एच तो ज़ीरो, तो हर एक टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो प्लस ज़ीरो सो ऑन प्लस ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ऑफ f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू स्मॉल ऑफ f ऑफ a प्लस एच। ऑल्सो वी नो दैट we know that capital of f of a plus h is equals to capital of f of a, तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल ऑफ f of a plus h की वैल्यू क्या है, स्मॉल ऑफ f of a plus h, और कैपिटल ऑफ f of a की वैल्यू क्या है, f of a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव a प्लस सो ऑन h की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, h की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 है डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस h की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल a, ये आएगा हमारे पास। तो अब जो हमें आंसर चाहिए था, जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, वो ये थी। ठीक है, सारी स्टेटमेंट सेम आ गई है, बस हमारे पास एक ही जगह क्या आना चाहिए, nth डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस थीटा h। ये कैसे हम निकालेंगे, रोल्स थ्योरम से। तो नाउ वी राइट, नाउ अप्लाइंग रोल्स थ्योरम ऑन f ऑफ x में पहला देखो, मुझे कैपिटल ऑफ f ऑफ x पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि कैपिटल ऑफ f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h। अब देखो कैपिटल ऑफ f ऑफ x में स्मॉल f ऑफ x है, उनके डेरिवेटिव्स हैं, प्लस a प्लस h माइनस x है, ऐसी वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमें मेंशन है कि f ऑफ x f डैश x
f double derivative x, f n minus 1th derivative of f of x are continuous in closed interval a to a plus h, and ये जो टर्म्स है a प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बीन पॉलिनॉमियल्स, ये भी क्या होंगे कॉन्टिन्यूस, और इनका अलजेब्राइक सम भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस। तो सब कॉन्टिन्यूस है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो वही हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव and so on f n minus 1 are continuous in closed interval a to a plus h, and ये तो हमें गिवन है, and a plus h minus x, a plus h minus x का होल स्क्वायर, so on a plus h minus x की होल पावर n, being polynomials are continuous in closed interval a to a plus h. तो इनका algebraic sum is also continuous, which implies algebraic sum of continuous function is continuous. तो इसका मतलब f of x भी क्या हो गया continuous हो गया in closed interval a to a plus h. सेकेंड पार्ट मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। अब मुझे स्टेटमेंट में मेंशन है कि nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल। अगर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी होगा, सेकेंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगा, थर्ड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगा, तो मतलब n माइनस 1th डेरिवेटिव तक हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल तक, ठीक है ना, इज इट राइट। और a प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बीइंग पॉलिनॉमियल्स, ये भी डेरिवेबल होंगे, उनका अलजेब्राइक सम भी क्या होगा डेरिवेबल। तो इसका मतलब एफ ऑफ कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गया डेरिवेबल हमारे पास, इज इट राइट गर्ल्स। अब यही आप यहाँ पर लिखोगे एज nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। अगर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है हमें गिवन है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि f डैश एक्स, f डबल डेरिवेटिव, सो ऑन n माइनस 1 डेरिवेटिव भी क्या होगा आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। और फिर मेंशन करोगे एंड a प्लस एच माइनस ऑफ एक्स, a प्लस एच माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सो ऑन a प्लस एच माइनस ऑफ एक्स की होल पावर एन, बीइंग पॉलिनॉमियल्स क्या आएंगे आर डेरिवेबल, ठीक है, इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। तो इसका मतलब कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या हो गए इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। थर्ड कंडीशन हमने जब फंक्शन कंसिडर करा था तभी बोल दिया था कि कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c such that f dash c is equals to 0। अब आप ये c कैसे कंसिडर करोगे, आपको क्या चाहिए nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा एच, मतलब a प्लस थीटा एच अलग डिफरेंट सी टर्म आ रही है, तो हम क्या करेंगे सच दैट f डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हुई हैं वो किस पे हुई हैं कैपिटल एफ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल एफ और यहाँ भी क्या आ जाएगा कैपिटल एफ, इज इट राइट फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये है ना हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। मुझे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एक्स को ए प्लस थीटा एच पुट करना है, सो दैट वो टर्म क्या हो जाएगी 0। तो मैं पहले निकालूंगी डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x we get f dash x, कैपिटल ऑफ f dash x is equals to f dash x, ठीक है, प्लस
यूवी फॉर्म लगेगी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव ए प्लस एच माइनस एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव एफ डबल डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और एफ डैश एज इट इज, तो -1 इंटू एफ डैश एक्स इज माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, दैट इज ट्वाइस ए प्लस एच माइनस ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय 2 एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस, सो प्लस n माइनस 1th डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव दैट इज nth डेरिवेटिव आ जाएगा, n माइनस 1 है उसका फिर डेरिवेटिव लिया था n डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज n माइनस 1 ए प्लस एच माइनस ऑफ एक्स n माइनस 2, फिर इसका डेरिवेटिव दैट इज -1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड सो इसका डेरिवेटिव लोगे ए एज इट इज रहेगा ना, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा n ए प्लस एच माइनस ऑफ एक्स की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ए, ठीक है। इज इट राइट गर्ल्स, इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ क्या है ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डेरिवेटिव, माइनस ऑफ ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डेरिवेटिव, ये टर्म इससे कैंसिल होगी, मतलब हर एक टर्म कैंसिल हो रही है। कौन सी टर्म कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि nth डेरिवेटिव वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। क्यों नहीं कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 सेकेंड गर्ल्स, हाँ यहाँ पर n माइनस 1th डेरिवेटिव है ना, तो जब हम n माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो n माइनस 1th हो जाएगा, वो वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, बस एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a प्लस एच माइनस ऑफ एक्स की होल पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव दिस, अच्छा यहाँ पर a प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा -1, तो यहाँ हमारे पास ये आएगा माइनस ऑफ, यहाँ पर n है ना तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो n से n कैंसिल आउट होगा, माइनस ऑफ a प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल a, ये क्या हो गया f डैश एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पुट x इज इक्वल्स टू a प्लस थीटा एच, तो क्या आएगा f डैश a प्लस थीटा एच, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है ये वैल्यू, तो ये किसके इक्वल होगा a प्लस थीटा एच है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास h माइनस थीटा एच की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा f nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा एच, यहाँ पर सेम आएगा माइनस h माइनस थीटा एच की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल a। मुझे पता है ऑल्सो वी नो दैट f डैश a प्लस थीटा एच इज 0, मतलब दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। इज इट राइट गर्ल्स, तो अब मुझे a की टर्म चाहिए ना, तो यहाँ पर h माइनस थीटा एच की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, और यहाँ क्या आ जाएगा f nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा एच माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ a प्लस थीटा एच इज माइनस ऑफ a इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास nth डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस थीटा एच, मतलब a की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब ये वैल्यू आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इन इक्वेशन नंबर स्टार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच f डैश a प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव a सो ऑन h की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ f एट a प्लस h की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल nth derivative of f at a plus theta h, which is the required Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder। अब इसकी क्रोलरी आती है, क्रोलरी क्या है, मैक्लॉरेंस थ्योरम।
मैक्लॉरेंस थ्योरम। इसमें क्या करोगे आप, पुट a इज इक्वल्स टू 0 और h इज इक्वल्स टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव 0 प्लस सो ऑन एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 n माइनस 1 एट डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 प्लस x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ f एट थीटा ऑफ x, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड मैक्लॉरेंस थ्योरम विद Lagrange's form of remainder. Only this much for today class. Next class में हम डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम विद Cauchy form of remainder. Okay girls, thank you.